Last lecture what we are completed with them. Can you hear me, madam? Hello. Hmm. 27 submit. So come to sum number 26. Sum number 26. The mean and standard deviation from a group of 100 observations are given to be as 65 and 7.03 respectively. If 60 of these observations have the mean and standard deviation to be as 70 and 3 respectively, what is the standard deviation for the group of comprising 40 observations? In that case, for sum number 26, here. For question number 26, the total number of observations they are 100. That 100 observations, it has been divided into groups. One, which is comprising of 60 observations. Other, which is comprising of 40 observations. चलो. So, let's start with the sum. Total number of observations are 100 which are been divided into groups. One is of
Group 1. The result. Group 2. First group. It is comprising of 60 observations. Second group. It is comprising of 40 observations. The mean and standard deviation for the 60 observations are given as mean x1 bar is given as 17. Sigma 1 is given to be as 30. Your aim is to find the standard deviation of the second group and the total number of observations. They are given to be as 100. And with respect to that, you have been known with some values. 1 is 65 and another one is 7.03. चलो कौन बताएगा बेटा 65 it belongs to 65 value. What it belongs to? Anyone? The mean and standard deviation for a group of 100 observation is given as 65. तो 65 क्या है कोई बता सकता है? No one? It is the combined mean. And 7.03, madam, it represents combined standard deviation. Madam. So in order to find the sigma 2, here will require the planning, but planning. Without planning, sum solve नहीं हो सकता है. In the given sum, check out what are the things which are missing. Directly बड़ा sigma 2 नहीं मिलेगा. What are the things which are missing? पहले we don't have x2 bar. सब में दिया नहीं है तो फर्स्ट थिंग दैट हाउ यू विल फाइंड दिस x2 bar. चलो कौन बताएगा मुझे फटाफट? चलो एनीवन स्टूडेंट्स?
if I want to find the value of बड़ा x bar, तो उसके लिए I will have to find combine by using the formula of बड़ा combine mean, मुझे x bar मिल जाएगा मैडम। फिर मिसिंग और कौन कौन है बेटा मिसिंग? तो तुम्हारे पास सब में होना चाहिए था मैडम, D1 D2, जो तुम लोग के पास बेटा नहीं है बट फाइंड करना पड़ेगा। मैंने फॉर्मूला दिया था बेटा हाउ टू फाइंड D1 एंड D2, बस वही फॉर्मूला यूज करके फटाफट सम सॉल्व कर डालो, आंसर आ जाएगा। पूरा का पूरा मैंने प्लानिंग बता दिया तुम लोग को। चलो तो स्टार्ट विद फर्स्ट, by using the formula of combined mean, x bar to the base 1 2, which is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar whole upon n1 plus n2। चल कंबाइन मीन जो सब में दिया हुआ है, what is the value of the combined mean is the value of the combined mean is given to be as 65, n1 का वैल्यू 16, x1 बार का वैल्यू 70, 40 into x2 bar might 9, whole upon n1 plus n2 100। चलो बड़ा कौन बताएगा x2 बार? ओके चलो x2 बार is equal to आंसर इज 57.5। अब आराम से बड़ा D1 D2 मिल जाएगा। D1 is equal to
x bar to the base 1 2 माइनस बड़ा द मीन ऑफ, चलो क्या आंसर आ गया बड़ा उसका? d1 इज इक्वल टू, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। d1 का वैल्यू बड़ा चेक करो, तो आंसर 5 मिला। d2 d2 is equal to combined mean minus what is the mean of, चलो आंसर आ गया उसका। d2 which is equal to 7.5. अब फॉर्मूला बड़ा, फॉर्मूला ऑफ combined standard deviation is equal to it is the root of n1 into sigma 1 square plus 2 into sigma 2 square plus d2 square whole upon n1 plus into, ये देखो तुम लोग के पास बड़ा सब में क्या क्या है, बड़ा you have the combined standard deviation n1 into d1 d2 sigma 1
ये सब वैल्यूज है, तो क्या तुम लोग खाली एक सिग्मा 2 मेरे लिए फाइंड नहीं कर सकते हो? क्या तुम लोग मेरे लिए एक सिग्मा 2 फाइंड नहीं कर सकते हो? बिल्कुल फाइंड कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? 100% कर सकते हो। यू पीपल आर माई स्टूडेंट्स हो। मैं तो बोल रहा हूँ जाओ सीधा सम के ऊपर बेटा टूट पड़ो और आंसर लाओ बेटा मेरे लिए। पथरीले रास्ते से गुजरते हुए बेटा तुम्हें सम को सॉल्व करना है। बीच में बेटा खतरनाक खतरनाक जानवर तुम्हें मिलेंगे, जैसे कि स्क्वायर रूट। डरना मत बेटा, उसे तुम लोग को डराएंगे, मार नहीं डालेंगे। तो रूट को भी वहां से निकाल देना है बेटा, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। कम ऑन अबे। बराबर है, करेक्ट। बट 4.03 आंसर तो दिया नहीं है बेटा, तो उसका नियरेस्ट वैल्यू ले लो कोई। 4.03 इट कम्स टू नियरेस्ट। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? 4.03 comes to बेटा नियरेस्ट which वैल्यू? यस, वेरी गुड हिम्मत, रिटेन, मानव, बराबर है, वेरी गुड। तो ऑप्शन सी इज कंसिडर्ड टू बी एज योर करेक्ट आंसर। तो भाई देखिए, ओनली बॉयज आर आंसरिंग, गर्ल्स वेयर आर यू पीपल? दूर दूर तक बड़ा कंपटीशन में भी नहीं हो तुम लोग। कुसुम, खाली बेटा 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 आंसर्स कॉपी नहीं करवाना पड़े। दिशा, लिप्सा, अविष्का, नियति, खाली मस्त बड़े बड़े आंसर कॉपी कर रहे हो तुम लोग सब। कंपटीशन में ही नहीं हो तुम लोग, कंपटीशन। सैवियो माय बॉय, क्यों आए सैवियो? कोई खबर? देखो अभी इतना बोलने के बाद भी कोई कंपटीशन नहीं। उत्कर्षा, वेरी बैड। चल चल कॉपी करके आंसर आ गया तुझे उत्कर्षा। मेरे बॉयज ने आंसर लाया है सब लोग ने, फटाफट कॉपी करके दाब लिया ना आंसर तूने, फटाफट। लिप्सा तो खाली लास्ट में बोलना है सर मैं प्रेजेंट हूँ, लिप्सा।
मस्ती कर घर पे बैठे बैठे वहां पे। चलो नियति, आंसर आया बेटा तुझे नियति? अनुष्का, चलो बेटा नेक्स्ट। Now again we'll be starting better with the sum in which better will be provided with all the wrong values and sum बनाने वाला इंसान बेटा पूछेगा find the correct values। और ऐसे टाइप के सम्स हम लोग ने बेटा पहले भी सॉल्व किए हुए राइट। जानबूझ के एक तो रॉन्ग रॉन्ग वैल्यूज दिए हो गए और ऊपर से बड़ा फाइन करने के लिए बोला जाएगा। फाइंड फाइंड करेक्ट वैल्यूज हो। तो सम हम लोग जो सॉल्व करने वाले हो इट इज बेस्ड अपॉन बेटा फाइंडिंग ये देखो करेक्ट करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन बोलो करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन बोलो करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन बोलो but it will be based upon एक the correct value of correct value of summation of x square upon m minus correct mean the whole square ये हो। That means for finding but a correct standard deviation you will be requiring but a two values and that two values which you will require that is ये देखो one correct value of summation of x square and दूसरा correct mean the whole square। चलो अब मुझे बता how you will find a correct mean।
करेक्ट मीन का जो वैल्यू है वो कैसे मिलेगा मैडम? करेक्ट मीन इज इक्वल टू करेक्ट वैल्यू ऑफ correct value of summation of x upon n बड़े ये देखो इसका मतलब in order to find the बड़ा correct mean first बड़ा you will have to find the correct value of summation of x बड़ा देख लो यहाँ पे और तुम्हारे पास बड़ा कोई भी करेक्ट वैल्यू